नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुलाजिमतों पर तकर्रुरात और बेरोजगारी से निमटने में हुकूमत बैकफुट पर। बेरोजगार नौजवानों की बेचैनी दूर करते हुए मुलाजमतें फराहम की जाएं। असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। नोटबंदी और जीएसटी से बेरोजगारी में इजाफा। मियाद मुकम्मल होने तक 1,12,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस का ऐलान। शहर में ट्रैफिक मसाइल, बैंक कर्जजात और कॉलेजेस में लेक्चरर्स के तकर्रुरात पर मजलिस ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी का दबीरपुरा डिवीजन में तवील दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना और आवाम से मुलाकात। शहर में मुख्तलिफ मकामात से 3 सारे गिरफ्तार, मसरूखा गाड़ियां, जेवरात और नकद रकम बरामद। और मलकाजगिरी के खानगी स्कूल में इंतजामिया की लापरवाही, 3 साला नर्सरी का तालिब इल्म सम्प में गिरकर फौत। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकारी मुलाजमतों पर भर्ती और बेरोजगारी के मसले से निमटने के मामले में हुकूमत बैकफुट पर है। असेंबली में मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि ये एक अहम मसला है, हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। कायदे मजलिस ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से अवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वो समझते थे कि उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल बदलेगा। This is the crucial issue as it concerns thousands and lakhs of youth, and it is the responsibility of the government to ensure that jobs to all eligible, employable youth in the state, in the government as well as in the private sector, so that at least one member of every family is gainfully employed. The Honorable CM Saab has stated in August House on 24th of November 2014 that there were 11,68,235 unemployed youth in the state. That time, this was way back in 2014. And now, I may be wrong and it is subject to correction. The number has reached approximately 14 lakhs. And when we talk about this subject, we also have to remember and not forget that these youth were also responsible for the creation of the Telangana state. These youth have also sacrificed their lives for the statehood of Telangana. These youth have also taken active participation for the Telangana state, and these youth had built up hope and built up dreams that once the Telangana state comes into existence, their aspirations, their hopes, their dreams would come into a reality. Let it be the state government or the government of India. The government of India as well has also promised of creating 1 crore jobs in the country, but they have also failed. We cannot work on the 1971 cadre strength. I hope that the government would make a note of this point, which has been repeatedly raised by my kind self, and I have been demanding that a new cadre strength needs to be created. And at the same time, the most important thing which needs to be brought to the aspirants seeking or running for a government job, that government job is not easy. At the same time,
the moment they get the job. I would like to come on record and say that many people might feel bad, but not everybody. But there are also many government officials, after getting the government job, they do not take their work as serious as they should take. They should also be made accountable. Why is the government failing? This also needs to be understood. When the Honorable Minister Sahab is going to give a reply, I request him to give all the details of all the posts which were notified and the process for which was started, and the orders of stay which was issued by the Honorable Court. Because it is necessary that the people of the state need to know what is happening, who is going to the court, and who is stopping this recruitment. Let it be whatever number it is. My friends would criticize and say that it is a very small number, whether it is a small number or big number, but the people need to know as to how many such appointments have been stopped. This is a very important thing, madam. And lastly, मैं मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहिबा आपसे, आपके जरिए हुकूमत से फिर यही कहना चाहता हूं कि यह मसला बहुत संगीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नौजवानों को रोजगार देना हुकूमत की जिम्मेदारी है. बहुत से तवक्कुआत को वाबस्ता कर जोड़कर हर नौजवान ने यह समझा कि तेलंगाना आएगा तो हमको रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, खुशहाली आएगी, नौकरी मिलेगी. और आज नौजवान आज बेचैन है, और उस बेचैन नौजवान को हुकूमत को चाहिए कि उनकी बेचैनी को दूर करते हुए उनके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करे, उनको रोजी रोटी मुहैया करे. और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस मसले की अहमियत को महसूस करेगी और महसूस करते हुए जल्द अज जल्द ऐसे इक़दाम करेगी जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजी दिला सकते हैं. मैं आखिर में यह भी जरूर कहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेलंगाना स्टेट को नंबर 1 स्टेट मिला है. मैं इसके लिए तेलंगाना स्टेट को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कहूंगा कि जॉब क्रिएशंस का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सरकारी मुलाजिमतों का इंतजाम करना, बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी नए रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिशें करनी चाहिए. चाहे वह आईटी सेक्टर हो, चाहे वह इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो. जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, उतने रोजी हमारे नौजवानों को मिलेगी. तो मैं आखिर में फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने के लिए. शुक्रिया डिप्टी स्पीकर मैडम. मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने भी कहा कि बैरूनी ममालिक के तारकीन वतन जो बेरोजगार हुए हैं, मुल्क वापसी के बाद उनके रोजगार के बारे में तवज्जो दी जानी चाहिए. मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहब, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से मेरा एक मुतालबा है कि तेलंगाना स्टेट के वो लोग जो दीगर ममालिक में कंट्रीज में सर्विस कर रहे वापस आ रहे हैं, गल्फ में, सऊदी अरब में, उन लोगों के रोजगार के लिए भी आप एक बार बुला के बात करें, उनके लिए भी कोई प्रोविजन निकाले, गुंजाइश निकाले, ताकि वो अपने स्टेट में, अपने मुल्क में आके अपने रोजगार को यकीनी बना सके. इस तरफ भी हुकूमत को गौर करके फैसला लेना चाहिए. शुक्रिया. वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि 63,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है. असम्बली में मुख्तसर मुबाहस के दौरान अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि जुमला 4,41,995 सरकारी जायदादें हैं, जिनके में जुमला 1,08,132 मखलूआ हैं. अब तक 27,744 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं. कमलनाथन कमेटी ने 1,400 मुलाजमीन को तकसीम नहीं किया है. ई राजेंद्र ने कहा कि जुमला जायदादों पर तकर्रुरात करने के बाद हुकूमत पर 3,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है. उस पर अमल होने तक उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है. रियासती वजीर ने बताया कि IT शोबे में तेलंगाना नंबर 1 है. इस शोबे में 2 लाख रोजगार के मौके पाए जाते हैं. नोटबंदी और GST के असर से मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है. तेलंगाना हुकूमत मुकामी अफराद को रोजगार फराहम कर रही है. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 72 एलामिये जारी किए गए हैं. बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है और वो इसे पूरा करेगी.
सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात और बेरोजगारी के मसले पर अपोजिशन जमातों ने असम्बली से वॉकआउट किया। मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस, तेलुगुदेशम, बीजेपी और सीपीएम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 1,12,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए शेड्यूल जारी करें। मखलूआत जायदादों पर वाइट पेपर जारी किया जाए। वजीर फाइनेंस के जवाब से अदम मुतमईन अपोजिशन ने कार्रवाई का वॉकआउट किया। इस मौके पर उमूर मुकन्ना के वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस 100 चूहे खाकर शाहकारी बनने की कोशिश कर रही है। जब नौजवान तलबा तेलंगाना तहरीक के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस कायदीन ने उनका साथ नहीं दिया। 10 साल में कांग्रेस ने जितने तकर्रुरात किए हैं वो टीआरएस ने 3 साल में किए हैं। अवाम ने 60 महीनों का वक्त दिया है, अभी इख्तिदार के 20 महीने बाकी हैं। आने वाले वक्त में 1,12,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस प्रोजेक्ट्स रोकने के लिए अदालतों से रुजू हो रही है, वहीं ग्रुप मुलाजमतों को रोकने के लिए भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही है। हरीश राव ने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल में 1 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया गया था, जिससे पूरा नहीं किया। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत कर्ज हासिल करेगी। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन जमातों ने जब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत को कर्ज में डिबो दिया गया है, हर पैदा होने वाला बच्चा 40,000 रुपये का मकरूज है। इस पर वजीर फाइनेंस ने जवाब देते हुए बताया कि अपोजिशन जमातें नहीं चाहती कि तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हों, सड़कें बने, गरीबों के लिए मकानात बने, रियासत के अवाम खुशहाल रहें। वजीर फाइनेंस ने कहा कि इन 3 सालों में 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया, जिसका सूद 8,600 करोड़ रुपए है। हुकूमत के पास कर्ज लेने की गुंजाइश है और क़वायद के मुताबिक कर्ज लिया जा रहा है। अवाम को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम की तरक्की के लिए बराबर कर्ज लिया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने गरीब अक़लियती तबके के कारोबारियों के लिए बैंक से मरबूत कर्ज़जात से मुताल्लिक़ स्कीम पर कहा कि 10 लाख रुपए तक कर्ज फराहमी का ऐलान किया गया था। साल 2015-16 में 1,53,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। उन्होंने बताया कि बैंक की तरफ से कर्ज नहीं दिया जा रहा है, जबकि उसे सिर्फ 20% कर्ज देना होता है। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि सिर्फ 14,000 दरख्वास्तें मंजूर हुई, जिनमें से कई दरख्वास्त गुजारों को कर्ज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि फौरी नई दरख्वास्तें वसूल की जाएं और जो ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्तें हैं उसे मंजूर करते हुए कर्ज जारी किए जाएं। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि अगर स्कीम अच्छी तरह से अमल होती है तो उससे तेलंगाना हुकूमत का नाम होगा। बैंकेबल स्कीम जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो गरीब व्यापारियों के लिए उनके कारोबार डेवलप करने के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई थी, वो बैंकेबल स्कीम है सर। ये स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने बाद में, पहले से ही स्कीम चल रही थी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम अप टू 10 लाख रुपीस तक छोटे व्यापारियों को लोन देंगे। तो उसमें काफी व्यापारी यहाँ खुश हुए, उन लोग आगे बढ़ के अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन डाले। मेरी नॉलेज के हिसाब से 15 और 16 में 1,53,906 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए आपको सर। 1,53,906 एप्लीकेशन जिसमें आपको रिसीव हुए, उसमें यह था कि 80% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और 20% बैंक से लोन मिलता है। तो हर आदमी खुश हुआ, अपने कारोबार को डिस्टर्ब भी होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ के पेपर्स डालते हुए ये स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करा। मगर अनफॉर्चुनेटली स्कीम तो आपने ऐलान किया, कई बैंकर्स आपके सैंक्शन के बाद भी कई बैंकर्स लोन नहीं दे रहे थे उन लोग को। वो गरीब व्यापारियों को इतना सता रहे थे पर्टिकुलर, जबकि बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ 20% लोन देने का है सर। 80% हमारे डिपार्टमेंट से, यहां से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जा रहा है सर। उसके बावजूद भी मगर कोई भी हमारे पास से यहां से कोई रिव्यू नहीं करा कि आखिर ये बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा, जबकि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन अमाउंट देने के बावजूद भी सर। इसके अलावा सर अगर 15-16 के अंदर हम देखेंगे तो ओनली 3,669 एप्लीकेशन हमने क्लियर किया सर। और 16-17 में 8,436 एंड 17-18 में 2,439, टोटल
44 एप्लीकेशन सर 1,53,000 में, आप देखें तो 15,000 एप्लीकेशन भी जिसके अंदर आधे से ज्यादा को पैसे नहीं मिले हैं सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं 15-16 के बाद कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिए सर, 15-16 के बाद अभी तक के एक एप्लीकेशन भी वापस नहीं लिए। तो मैं हुकूमत से ख्वाहिश करता हूं, मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि आप इमीडिएट नए एप्लीकेशन भी लीजिए, इसीलिए नए एप्लीकेशन लीजिए, आज लोग इंतजार में। और जितने पुराने एप्लीकेशन है जो एलिजिबल है सर उनको रिलीज करिए। अभी जैसा मिनिस्टर साहब बताए सर सिर्फ 27 करोड़ रुपए और ऐसे 69 और 45 करोड़, तो साहब ये अमाउंट बहुत कम है, आप जल्द से जल्द रिलीज करिए। और इसके अलावा सर एक आपने ओन योर ऑटो स्कीम निकाला सर, ओन योर ऑटो स्कीम के अंदर सर एक मर्तबा उन लोग को ऑटो दिए सर, उसके बाद से अभी तक कोई ऑटो नहीं दिया गया है सर। और जो भी है मेरी आपके जरिए से हुकूमत को ये ख्वाहिश है, स्कीम अच्छी है सर, मगर इसको 100% इंप्लीमेंटेशन अगर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा तेलंगाना गवर्नमेंट का नाम होगा सर। आज गरीब इंतजार में है सर, काफी लोग अपना जाती पैसा भी लगाए सर। तो मैं ये इसके बारे में आपसे क्लियर जवाब चाहता हूं और एप्लीकेशंस को कंटिन्यू रखिए और फास्ट रिलीज करिए। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने बताया कि आइंदा साल से दरख्वास्त गुजारों को 100% खर्च कॉरपोरेशन से दिया जाएगा। ऑटो देने की स्कीम के तहत जो साबिक़ में स्कीम से इस्तेफादा नहीं कर सके उन्हें ऑटो फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि ऑपरेशन स्माइल के तहत बच्चा मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुज़िर सेहत और ख़तरनाक शोबेजात से बच्चा मजदूरों को निकाला जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में कौमी बच्चा मजदूरी प्रोजेक्ट के तरबियती मरकज़ में शरीक किया जा रहा है। 31 अजला में कौमी बच्चा मजदूरी प्रोजेक्ट के मराकज़ कायम किए गए हैं। ज़िले और मंडल सतह पर टास्क फोर्स कायम किए गए हैं। एक और सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि करीमनगर में पुलिस स्टेशन और अमले में इजाफे का मंसूबा नहीं है। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि रियासत में 14 वेलनेस सेंटर को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2 सेंटर शुरू किए गए हैं। हैदराबाद में याकूतपुरा या चंद्रानगुट्टे में वेलनेस सेंटर कायम किया जाएगा। EGHS के लिए अलहदा CEO को मुकर्रर किया गया है। एक्रीडेशन कार्ड न रखने वाले सहाफ़ियों को भी स्कीम में शामिल किया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकारी मुलाजमीन और सहाफ़ियों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़ूम खान ने हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वक्फ़े सिफर के दौरान मौज़ूम खान ने मसले को उठाते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक की वजह से आलूदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं और आवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। उन्होंने सड़कों की तोसी के काम मुकम्मल किए जाने पर भी तवज्जो दिलाई। उनका कहना था कि सड़कों की तोसी से ट्रैफिक के मसाइल दूर हो सकते हैं। मौज़ूम खान ने शहर में बस स्टैंड्स, ऑटो स्टैंड्स की कमी पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने मजलिसी रुकन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर शहर के अरकान असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ट्रैफिक जैम का है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, अगर शहर हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री करना है तो आप ये चीज़ों पे इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। आज इस ट्रैफिक की वजह से शहर हैदराबाद में पोल्यूशन हो रहा है, उससे कई लोगों की सेहत बिगड़ रही है और बीमारियां आ रहे हैं। और प्रॉपर रोड वाइडनिंग नहीं होने की तरफ से आज शहर हैदराबाद के हर एमएलए, हर पार्टी के एमएलए रोड वाइडनिंग के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दिए हुए हैं। आज तक रोड वाइडनिंग के काम रुके हुए हैं। मैं ये भी डिमांड करता हूं कि आप जल्द से जल्द रोड वाइडनिंग करेंगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम दूर होने की कोशिश होगी। आज शहर हैदराबाद में फुटपाथ नहीं है। आज शहर हैदराबाद में जंक्शन इंप्रूवमेंट इतना जरूरी हो चुका है। आप जंक्शन इंप्रूवमेंट करेंगे तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बस स्टैंड्स के लिए बस स्टैंड नहीं है, ऑटो स्टैंड के लिए ऑटो स्टैंड नहीं है और कैब्स के लिए उनका कोई स्टैंड नहीं है। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की वजह से स्पीकर 0 आवर में ऐसा पूछते हैं, इतने सवाल रहते हैं 0 आवर में। जीरो ओवर में हम बोलना पड़ता सर, इसलिए बोलना पड़ता। आज शहर हैदराबाद में
सारे तेलंगाना के एमएलए आते हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, आप खुद भी रहते हैं। आज शहर हैदराबाद में किस तरीके से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है आप खुद देखते हैं। आप दिन रात गाड़ियों में फिरते हैं, आज रोड नहीं होने की तरफ से भी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है। और शहर हैदराबाद में जो ट्रैफिक पुलिस है सर, ये पब्लिक को क्या बोलते हैं तो सही रास्ते पे चलने के लिए नहीं, खाली चालाना मार रहे हैं और चालाना मारकर अपना वक्त जाहिर कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से काम करें तो हैदराबाद में ट्रैफिक प्रॉब्लम दूर हो सकता है। आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, आज ये बहुत अहम मसला है, ये सारे चीजें मैं जितने आपके सामने रखा हूं ये जल्द से जल्द कराना चाहिए। शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने उनके हलके में मौजूद जूनियर व डिग्री कॉलेज की हालत जार पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि मज़कूरा कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग अमले की फौरी ज़रूरत है, इसकी जल्द यकसुई होनी चाहिए। वज़ीर तालीम के सिहरी ने इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। गोलकुंडे के अंदर जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है। 2013 के अंदर डिग्री कॉलेज ओपन हुआ और आज की तारीख तक वहां पर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग और वहां पर फर्नीचर की जरूरत है। मैं साबिका में भी हमारे मिनिस्टर साहब को बताया था, इसकी सख्त जरूरत है। आपके जरिए मैं बताना चाहूँ మినిస్టర్ అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన విషయాలను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. త్వరలోనే ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం. अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि आदादशुमार का खेल खेलते हुए तेलंगाना को फाजिल बजट वाली रियासत बताया जा रहा है। वक्फे सवालात के दौरान जाना रेड्डी ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि आइंदा बजट इजलास में 2,20,000 करोड़ रुपए के खर्च का खुलासा किया जाए। इस पर वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि फाजिल बजट वाली रियासत का फैसला मरकजी हुकूमत करती है। तेलंगाना की तरक्की के लिए FRBM के तहत खर्च लिए जा रहे हैं। इस पर जाना रेड्डी ने चैलेंज किया कि FRBM के तहत अगर उदय बॉन्ड हासिल किए हैं तो वो भी ऐवान छोड़ देंगे। इस पर ई राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐवान असेंबली में कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश को हुकूमत तरजीह नहीं दे रही है। सरकारी तौर पर एक इश्तिहार भी जारी नहीं किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि किसी भी कौमी कायद के यौम पैदाइश पर ऐवान असेंबली में मुबाहस नहीं हुए हैं। इस पर जाना रेड्डी ने कहा कि कवायद ही नहीं लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत तरजीह नहीं दे रही है, मुस्तकबिल में इसका ख्याल रखा जाए। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने मदाखलत करते हुए कहा कि रविंद्र भारती में यौम अतफाल सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस आखिर क्या करना चाहती है ये कांग्रेस को भी नहीं मालूम। गुज़िश्ता 2 दिनों से जो तहरीक अल्तवा पेश किए गए हैं उस पर पहले ही ऐवान में मुबाहस हो चुके हैं। मंगल के दिन असेंबली में तेलंगाना वैल्यू एडेड टैक्स तरमीमी बिल और दूसरे तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा तेलंगाना आबकारी बिल 2017 को भी मंजूरी दी गई। 2017 be taken into consideration. Those who are for the motion please say aye. Those who are against please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को दबीरपुरा बलदी डिवीजन के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों और अवामी मसाइल का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन से अपने तवील दौरे का आगाज किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कोटला एहसानुल्लाह, नागाबोली, कमेला मस्जिद, काली मस्जिद, अली कैफे, दबीरपुरा दरवाज़ा, सैयद साहब का बाड़ा और कोमटवाड़ी का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। सैयद साहब का बाड़ा इलाके में 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मकानात और हज़रत अब्बास ज़ख़ीर आब के तामीरी कामों का भी बैरिस्टर ओवैसी ने मुआयना किया। हज़रत अब्बास ज़ख़ीर आब का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर शुरू किया गया था और अब ये काम मुकम्मल होने के करीब है। मुख्तलिफ मकामात पर अवाम ने आलूदा पानी, पानी की किल्लत, नाक़िस सड़कों के बारे में तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी की गुलपोशी की गई।
वजीर बल्दी नज़्म केटी रमाराव ने कहा है कि रियासत में मजीद 40 बल्दियात कायम की जा सकती हैं। इस सिलसिले में ज़िले कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इजलास के दौरान रियासती वजीर ने बताया कि 2011 की मरदमशुमारी और हुकूमत के जाम सर्वे के मुताबिक 15,000 से ज़्यादा आबादी वाले अहम ग्राम पंचायतों को बल्दियात में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो 15,000 आबादी वाले अहम ग्राम पंचायतों की निशानदही करें और मौजूदा बल्दियात के अतराफ अकनाफ 3 ता 5 किलोमीटर में वाक़ देहातों को जम करने के लिए निशानदही करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पंचायतों की मियाद आइंदा साल जुलाई में ख़त्म हो रही है, लिहाजा निशानदही किए गए पंचायतों को डी नोटिफाइड करते हुए इन म्यूनसिपैलिटीज़ में नोटिफाइड करना होगा। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश तकारीब के सिलसिले में 18 नवंबर को चौमल्ला पैलेस में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तकरीब में मौलाना आज़ाद अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर एस शुकूर ने बताया कि 31 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स के अलावा तलबा को भी अवार्ड दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, मुक़ामी रुकन असम्बली के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर और सेक्रेटरी भी तकरीब में शिरकत करेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में आई है। बताया गया है कि चार मीनार मंडल के तहत 9 और अंबरपेट मंडल के तहत 26 लड़कियों के अफराद ख़ानदान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। सरपरस्तों ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने मंगल के दिन MRO ऑफिस गोलकुंडा पहुंचकर शादी मुबारक के 85 चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। ये चेक्स गोलकुंडा और लंगर हाउस के इलाके के लोगों में तकसीम किए गए। वाज़ेह कि इससे पहले भी कारवान में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। कारवान हलके के और भी चेक्स की मंजूरी बाकी है और मंजूरी के बाद उसकी तकसीम अमल में आएगी। रुकन बलदिया किशनबाग डिवीजन मोहम्मद सलीम ने JHMC के आला अहदेदारों के साथ किशनबाग के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद को चाहिए कि वो मच्छरों के ताल्लुक से शुरू की गई शऊर बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने बताया कि डेंगू मच्छरों की अफजाइश साफ पानी में होती है और ये दिन के औकात में काटते हैं। उन्होंने मुकामी अफराद से अपील की कि वो अपने घरों, छतों और आसपास के इलाकों में पानी को जमा होने न दें। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बिहार के सीमांचल इलाके के बलरामपुर से मजलिसी जिम्मेदार आदिल ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की और मुकामी मसाइल व सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर आदिल ने किशनगंज के एक मुस्लिम डॉक्टर के कारनामे से भी सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। डॉक्टर इम्तियाज नैयर नामी मेडिकल साइंसदान ने जो लंदन में ज़ेर तालीम है, डेंगू, हेपेटाइटिस C और दीगर मोहल्लिक बीमारियों से हिफाजत के लिए वैक्सीन तैयार किया है, जिसकी दुनिया भर में सिताइश की जा रही है। बैरिस्टर उवैसी ने इस कारनामे पर मसरत का इजहार किया। बारकस के नौजवानों के एक वफ्द ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदार अहमद सादी के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल बारकस, सलाला, शाही नगर में तरक्याती कामों को मंजूरी दिलवाने पर बैरिस्टर उवैसी का शुक्रिया अदा किया। उवैसी हॉस्पिटल में यौम अतफाल तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बच्चों की सेहत और उनकी बेहतर निगहदाश्त के लिए मुख्तलिफ कैंप्स मुनक्किद किए गए। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि यौम अतफाल तकरीब का मकसद बच्चों की सेहत और बेहतर निगहदाश्त के बारे में शऊर बेदार करना है। बच्चों की ग़िज़ा और उनकी टीका अंदाजी भी अहमियत की हामिल है। डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि बच्चों के लिए 1 साल तक माँ का दूध इंतहाई ज़रूरियत का हामिल है, क्योंकि बच्चों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। यौम अतफाल के मौके पर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रह चुके बच्चों को भी मदऊ करते हुए केक काटा गया और बच्चों के वार्ड्स में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर HOD डॉक्टर अल्ताफ नसीम, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर नैयर ललानी और डॉक्टर हेमा बंधु भी मौजूद थी। उस्मान है, 11 दिन यहाँ पे वेंटिलेटर पे थे, बहुत प्रॉब्लम था इनको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, यहाँ पे इलाज अच्छा हुआ, बेहतर इलाज हुआ। हमारे डॉक्टर अल्ताफ साहब थे, उनकी टीम बहुत अच्छा कोऑपरेट करे।
कम से कम खर्च में इलाज होगा यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा बच्चा 28 वीक में पैदा हुआ यहाँ, उसके बाद पैदा होने के बाद वेंटिलेशन पे रखे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करे, टाइम पे जो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरा करे और कम से कम एक्सपेंसेस में मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होकर घर गया। उधर असरा हॉस्पिटल में आलमी यौम ज़ैबतीज़ के मौके पर सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने ज़ैबतीज़ के अलामात और असरात से वाकिफ करवाया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने 4TV से बात करते हुए बताया कि हामिला ख़वातीन में ये मर्ज़ आम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मर्ज़ का असर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर पड़ सकता है। डॉक्टर माजिद आदिल ने बताया कि 40 साल उम्र की तकमील पर हर शख्स को अपना तिब्बी मुआयना करवाना चाहिए। खाने पीने पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। बेकायदा ग़िज़ा सेहत को मुतासिर कर सकती है। और औरतों पे जो असर है इस बारे में एम्फेसिस दिया गया इस दिन, इस साल में। और जेस्टेशनल डायबिटीज़, जब प्रेग्नेंट वेमेन में जो डायबिटीज़ होता है वो आजकल कॉमन है और बढ़ता जा रहा है और इसकी भी ख़ास तवज्जो दी गई है। वैसे इंडिया स्लोली डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ इंच कर रहा है और इसमें भी हैदराबाद इज़ गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। तो इस वजह से हमें ज़रूरी है कि हमारे रहन सहन को, हमारे आदतों को, हमारे खाने पीने को कंट्रोल में रखें और अपने आप को ये ख़तरनाक बीमारी या एक लाइफस्टाइल डिजीज़ जो मानी जाती है इससे अपन बचा के रखें, क्योंकि इस डिज़ीज़ का असर हर शोबे पे पड़ता है। जैसे किडनीज़ में रीनल नेफ्रोपैथी होती है, रीनल फेलियर में रिज़ल्ट कर सकता है। हार्ट में जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और इसका असर जो है जनरल सिस्टम्स पे पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, और ब्लैडर पे पड़ता है, लीवर पे भी होता है। तो इस तरीके से डायबिटीज़ हर ऑर्गन पे असर करती है। तो हमारा मैसेज यही है असरा हॉस्पिटल की तरफ से कि जो है अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और डायबिटीज़ से अपने आप को बचा के रखें। सलमान नगर किशनबाग इलाके में वाक़े सेटविन के तरबियती मरकज़ में पानी जमा होने से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से सेंटर के अहाते में बारिश का पानी जमा होकर कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिससे तलबा को आमद-ओ-रफ़्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने अरबाब मजाज से मसले की यकसुई की दरख्वास्त की है। गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट में मुंडेदारों और सदरनशीन के तनाज़े की दारुस्सलाह में यकसुई अमल में आई है। मार्केट के मुंडेदारों ने दारुस्सलाह में मजलिसी कायदीन से नुमाइंदगी करते हुए सदरनशीन के रवैये के खिलाफ शिकायत की थी। मंगल को अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और जाफर हुसैन मेराज ने तरकारी मार्केट पहुंचकर मुंडेदारों से बात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि मार्केट की मुकम्मल तामीर तक उन्हें पुरानी मार्केट में कारोबार का मौका फराहम किया जाएगा। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि इस सिलसिले में वो वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव से बातचीत करेंगे। रेड हिल्स में वाक़ आबरसानी के दफ्तर पर मुलाजमीन को शराब नोशी में मशगूल पाया गया। तफसीलात के मुताबिक लैंडमैन शंकर, वर्क इंस्पेक्टर नायक और मीटर रीडर नरेंद्र के अलावा गैर मुतल्लिक़ अफराद भी दफ्तर के अंदर शराब पीते हुए पाए गए। बताया गया कि मुलाजमत के औक़ात सुबह 9 ता शाम 5 बजे तक हैं। इसके बाद दफ्तर में कोई काम नहीं होता है, फिर भी मज़कूरा मुलाजमीन दफ्तर में बैठ कर शराब नोशी कर रहे हैं। रेड हिल्स के आबरसानी दफ्तर के मैनेजर को चाहिए कि वो अपने स्टाफ पर नज़र रखें और ऐसी हरकतों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 170 के पास पेश आए जानलेवा हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। महलूक शख्स की 21 साला भरमार की हैसियत से शिनाख्त की गई है। मंगल के दिन एक नामालूम गाड़ी ने उसे टक्कर देकर हलाक कर दिया। महलूक शख्स ऑस्ट्रेलिया में MS में ज़ेर तालीम था। वह पहला सेमेस्टर मुकम्मल करके शहर आया था और अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से टक्कर देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। जुबली हिल्स पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बापू नगर एसा नगर के रहने वाले 24 साला P गौरीश उर्फ पितानी RN रेड्डी को कृष्णा नगर में गिरफ्तार किया। ये रियासत आंध्र प्रदेश का मुतवत्तिन बताया गया है।
बताया गया है कि मुलजिम बुरी आदतों में मुब्तला था और इसकी ख्वाहिशात ऑटो रिक्शा की आमदनी से पूरी नहीं होती थी। वह ऐसे मकानात को निशाना बनाता है जिसके दरवाजे और खिड़कियां खुली होती हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 8 केस दर्ज हैं। बताया गया है कि मुलजिम को ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मसरूखा अशिया फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम के कब्जे से मसरूखा तलाई मूर्तियां, एक तलाई चेन के अलावा चांदी का बर्तन भी बरामद किया गया है जिसकी मालियत 23 लाख रुपए बताई जाती है। उधर मार्केट पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नाज़ोन 20 सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 35 साला विजेंदर रेड्डी और करीमनगर के मुतवातिन 32 साला यूनुस मोहिउद्दीन को गिरफ्तार किया। बताया गया कि सरखना मुलजिम ए विजेंदर साबिक में सिद्दीपेट का वार्ड नंबर और सरपंच भी रह चुका है। मुलजिमीन को 13 नवंबर को इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद में गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन सरके की कई वारदातों में मुलव्विस थे। मलकाजगिरी शिवापुरी कॉलोनी के खानगी स्कूल में संप में गिरकर 3 साला बच्चा हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक नर्सरी का तालिब इल्म शिव रचित खेलने के दौरान संप में गिर गया था। ताजुब की बात ये देखने में आई कि कमसिन बच्चों के स्कूल में संप का ढक्कन खुला पाया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुतवफ़ी शिव के अफराद ख़ानदान ने स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तीगल कुंटे की सरकारी अराजी पर चंद अफराद नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मज़कूरा अराजी की साफ सफाई करते हुए वहां किसी को कचरा नहीं फेंकने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मज़कूरा अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। मज़कूरा अफराद सरकारी अराजी पर अपना साजो सामान ला कर रख देते हैं और वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो वहाँ अरसे से मुकीम हैं और उनके अगराज व मकासद में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सरकारी और गैर सरकारी अराजी पर कब्जा करना या कब्जे की कोशिश करना शहर और उसके नवाही इलाकों में एक आम बात हो गई है। हुकूमत अगर सरकारी अराजी की सही तरीके से देखभाल करे तो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, वरना इसी तरह लैंड ग्रैबर्स के हौसले बुलंद होते रहेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुलाजिमतों पर तकर्रुरात और बेरोजगारी से निमटने में हुकूमत बैकफुट पर। बेरोजगार नौजवानों की बेचैनी दूर करते हुए मुलाजमतें फराहम की जाएं। असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। नोटबंदी और जीएसटी से बेरोजगारी में इजाफा। मियाद मुकम्मल होने तक 1,12,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस का ऐलान। शहर में ट्रैफिक मसाइल, बैंक कर्ज़जात और कॉलेजेस में लेक्चरर्स के तकर्रुरात पर मजलिस ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी का दबीरपुरा डिवीजन में तवील दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना और आवाम से मुलाकात। शहर में मुख्तलिफ मकामात से 3 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा गाड़ियां, जेवरात और नकद रकम बरामद। और मलकाजगिरी के खानगी स्कूल में इंतजामिया की लापरवाही, 3 साला नर्सरी का तालिब इल्म संप में गिरकर फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।